میں کہتا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کہنا ہے جو باپ اس کو میں بھی معاف کر دیتا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور یہ آپ کے بھتیجے ہی آپ کی جان کے دشمن بن گئے مجھے بڑی تکلیف چائے بلاتے نہیں دینا سامنے پیتے تھے میں گھستا کہتا تھا تو صحیح ہے تو آپ کا جو بھائی ہے اس کا کیا ریئیکشن ہے اس بات پر جو انہوں نے آپ کو تھپڑوں سے مارا ہے وہ بیچارہ بے بس ہو گیا ہے اس کے بعد کی بات نہیں وہ ختم ہو گیا میں نے اس کو نہیں مارا اللہ مارے گا میرے مارتا ہے نا تو اللہ مارے گا میں نہیں مانوں گا میں تو پھر بھی کہتا ہوں آپ بھی جیے میں بھی جی لیتے میرا کیا دھوکا السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضا شرازی. آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ARS پاکستان دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چند روز قبل ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے جس میں مسجد کے اندر مسجد کا تقدس پامال کرتے ہوئے ایک شخص نے ایک بزرگ آدمی کو مارنا شروع کیا. اس کے بعد دو لوگ اور دوڑتے ہوئے آئے اور اس بزرگ آدمی کو مارنا شروع کیا اور مار مار کر اس کو بے حال کر دیا. میرے ساتھ وہ بزرگ بھی موجود ہیں اور اس بات کی آپ کو وضاحت بھی کروائیں گے کہ یہ جھگڑا کس بیس پر ہوا، آخر یہ مسجد کی لڑائی انہوں نے اپنے گھر کیسے لے گئے اور اللہ کے گھر کا تقدس کیوں پامال کیا. میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دکانیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ مسجد کی پراپرٹی ہے. یہ 4 دکانیں لگ بھگ یہاں پر جو کہ مسجد کی پراپرٹی ہیں اور اس کا کرایہ جو رینٹ ہے وہ مسجد کو جاتا ہے. ایک صاحب جو کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ مسجد نے مجھے رینٹ پر دی ہے اور دوسرا جو شخص اندر حوالات میں بند ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس تھی اور ہم اس جگہ کے صدر ہیں. اور جیسا کہ علاقہ مقیم نے یہ بتایا ہے کہ جو یہاں پہ مسجد کے صدر ہیں ان کا نام رشید خان ہے اور وہ چند دنوں سے بیمار ہے اور کل ان کو جو پٹائی ان کی ہوئی ہے، جو مار پیٹ ان کے ساتھ مسجد کے باہر ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے سٹریس میں ہیں اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آ رہے. اور علامہ صاحب ان کے گھر بھی گئے ہیں، جو مسجد امام صاحب ہیں انہوں نے ان عیادت کے لیے گئے اور ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ آپ مسجد کیوں نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سٹریس میں ہوں، میں خوفزدہ ہو گیا ہوں، میں ابھی مسجد نہیں آ سکتا. باقی کی گفتگو ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے مسجد کے اندر، ان کو کیوں مارا اور ان سے یہ باقی کی باتیں کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. تو میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اجاد حسین صاحب جن کو مسجد کے اندر مار پڑی ہے. آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ ان کے بھتیجے ہی ان کے گلے پڑ گئے اور ان کا کافی برا حال کیا. جی السلام علیکم. میرا نام اجاد حسین ہے. جو تھے انہوں نے مجھے مارا ہے تو میں اندر گیا ہوں، وضو کیا، نماز پڑھنے لگا ہوں تو مجھے مارنا شروع کر دیا. تو وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے. وجہ تو میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ دکان کی مسئلہ ہے. وہ دکان میرے نام تھی، دکانوں کو چاہیے تھی، وہ کہہ رہے تھے خالی کر دو، میں نے ان کو واپس دے دی. اس کا قبضہ ہو گیا نا، کیونکہ انہیں قبضہ کر لیا. ان کو کرایہ بھی نہیں دیتا تھا. 2 سال ہو گئے تین اس چکر کو چلتے ہوئے. سال پہ آ کے تو بہت زیادہ کام خراب ہو گیا. انہوں نے نا یہ کیا، قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد ان کو رینٹ بھی نہیں پے کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ ان سے لیں جس کے نام کا کرایہ نامہ نہیں تو ہمارے نام نامہ کرو جی اگر رینٹ لینا ہے تو. اچھا، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ وضو کر کے نکلے ہیں تو ایک شخص آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے. اس کے بعد 2 لڑکے پہلے بھاگے آ رہے ہیں. ان میں سے ایک آپ کا بیٹا تھا؟ نہیں، وہ دونوں بھتیجے تھے. بھتیجے تھے. ایک شخص نے آتے سار ہی اس بندے کو مارنا شروع کیا ہے، ساتھ آپ بھی اس کو مارنا شروع ہو گئے. کس کو؟ وہی بندہ جو سب سے پہلے آپ کو مار رہا ہے. نہیں، میں تو نہیں مارا، مجھے مار رہے ہیں. پہلے آپ کو مار رہا تھا نا، اس کے
बाद वीडियो में ये देखा जा सकता है कि आप जब वो भागा भागा आता है तो वो आप पर जो हमलावर था, एक लड़का आता है, वो लड़का कौन था? उसके बाद दो भाई वो फिर आए। नहीं नहीं, वो तीनों आए थे, तीनों भाई आए थे। पहले एक भाई आया था, फिर मेरा बेटा आया। फिर आपका बेटा आया, वो मुझे छड़ा रहा था, वो मुझे छड़ा रहा था। फिर मेरे बेटे को मारा था, फिर मैंने उसको पकड़ के ना बेटे को छड़ा रहा था, मैं मार नहीं रहा था। मेरे ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ? क्या उसके दिल में खौफ खुदा नहीं है, या उसके दिल में ये दर्द नहीं है कि ये बाप और चाचा में क्या डिफरेंस होता है? बाप की जगह पे होता है, उसके वालिद साहब याद है कि नहीं? याद है, माशाल्लाह ठीक ठाक है, A1 फिर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैंने इनको अपने हाथों से पाला, ऐसा मसला नहीं है। तो उस बच्चे ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आपने पहले उसके फादर को मारा है, उसका बाईपास का ऑपरेशन हुआ है, इसमें कितनी सदाकत? मैं कहता हूँ कि अगर जैसी मारा हुआ है ना, तो कोई हमें दिखा दे कि कहाँ मारा है। ये कह रहे हैं ना कि पहले मारा, हम क्यों मारे? मैं तो आपके सामने नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं उन्हें मार के आंदा तो फिर मेरे मगर ये चढ़ देना। मैं तो आराम से बैठा हुआ, मैं तो नमाज पढ़ के तो उधर पहले थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैं बैठ के आराम ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਚਾਚਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੜੀਏ, ਕੱਲ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ? उन्होंने कहा आज इन्हू मारने। असल में मेन वजह मैं आपको बताता हूँ क्या। उनका मकसद ये है कि मेरा तो एक बेटा है, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੌਫਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲਾਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। रक्शे वाला ना किराए ते कोई आ जाता उन्होंने कुटना शुरू कर देना। सानू मगर कोई थाने 2 दिन रहे असीं जेल दे विच, ਉਹ ਮਗਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਥਾਣੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਥਾਣਾ ਠੂਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। तो ये जो बेटा आपका मेरे साथ बैठा हुआ है, इसका क्या नाम? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार, आप ये बताइएगा कि आपके सर पर क्या हुआ है? सर पे उन्होंने पिस्टल था उसके हाथ में, ठीक है, उसने मेरे मारा है, ठीक है, और एक ने मुझे इधर से पकड़ा हुआ था, एक ने इधर से पकड़ा हुआ था, एक ने मेरे टांगों से पकड़ा हुआ था, ठीक है। जब ये सब कुछ हो गया है, उसके बाद उसने मुझे मारा, मैं बेहोश हो गया, ठीक है, ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद मुझे नहीं पता चला। और फिर SHO साहब आ गए हैं, जब मैं उठाऊँ होश आई है मुझे 2 मिनट बाद। SHO साहब कहते हैं उठो, मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा ऐसे उठा के, कहते हैं मेरिट पे काम होगा। अभी तक तो मेरिट भी हो रहा है, ठीक है। आज कोर्ट गए हैं, ठीक है, तो वो ये वाले साहब हो गए हैं, उनको जुडिशल कर दिया गया है कि 2-3 बंदे जो हैं उनके अभी तक नहीं पकड़े गए, ठीक है। ऊपर से अभी तक उन्होंने मस्जिद में तौहीन अदालत हुई, मस्जिद की तौहीन हुई है, उसका भी दफ़ा नहीं लगाई। अभी तक हमारा जो केस है, अभी तक हमें समझ नहीं आ रही है हमारे साथ क्या होना है, पर हमें इसका जो है ना इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिले, हम ये चाहते हैं। क्योंकि तो इससे पहले भी पता चला है कि आपके ऊपर ये 751 के काफ़ी ज़्यादा पर्चे हुए हैं, वो क्या सीन है? वो ये मुसलसल हम ना इनके साथ यही कोशिश करते रहे हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, कि यार हमने इधर ही रहना है। कितने पर्चे हुए हैं आपके ऊपर ये 751 के? 7 के कम से कम ये ना 8 तक तो होंगे। इन लोगों के साथ ही आपके 751 इनका ही होती है, इनके साथ ही। हम नहीं करते, वो करते हैं, हम तो कुछ कहते ही नहीं। पुलिस आप दोनों को पकड़ के बंद कर देती है ताकि आप सुलह करें, अगर सुलह नहीं करेंगे तो सुबह जमानत करवाएं। यही होता है हमारे साथ, ये ज्यादती होती रही है। आज ये जो वाकया हुआ है ना, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हादसा ज़्यादा हैवी हो जाता, फिर भी हमें ये जो इंसाफ नहीं मिलना था, क्योंकि हम इंसाफ चाहते हैं, कानून से इंसाफ चाहते हैं। ये पैसे देते हैं, हर चीज़ बिक जाती है। तो क्या इंसाफ चाहते हैं? मस्जिद जो अल्लाह का घर है, उसकी जो साथ में अकद में वो प्रॉपर्टी है, वो आपको दे दी जाए? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हम कुछ भी नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देखें, जो अल्लाह के घर में जो काम हुआ है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तो हम कैसे माफ़ कर सकते हैं? अल्लाह ताला माफ़ करेगा। ये बेस क्या है लड़ाई की? बेस ये है कि वो कब्ज़ा कर रहे हैं, वो कमेटी पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, और ये दुकान पे
सारों पे कब्जा करके रोब दबदबा और ये पैसा कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। मेन चीज़ तो हमें ये लग रही है, कब्जा करके ये कैश का या कोई सिस्टम होगा कि पैसा हमें आए, हम जो है ना इसका खाएं पिएं ऐशी करें बस। आप कितनी देर कमेटी के सदर या कोई मेंबर रहे हैं जिसको ये फंड इकट्ठा होता था? मैं तो एक दफा भी नहीं था। वो अब फंड उनको आता है, किनको? इन लोगों को? इन लोगों को फंड नहीं आता, इनके पास कोई रसीद नहीं। अब मस्जिद कमेटी की जो सही है कमेटी, वो बिल भी जमा कराती है, मुलाजमों को तनख्वाह भी देती है, ठीक है कि नहीं? तो उसके बाद उनके पास पूरा वो करवाते हैं, उसका ऑडिट करवाते हैं, जो रसीदें हैं सारी चेक होती हैं। वो कोर्ट में उन्होंने जाके इन्होंने केस किया था ना, तो इनके पास कोई रसीद नहीं है। उन्होंने कहा ये कमेटी बिल्कुल। मस्जिद के सदर हैं उनको भी मारा है। मस्जिद के सदर को किस बेस पे मारा उन्होंने? इसी बात पे मारते हैं। दुकान की हमसे किराया ना मांगे, वो इसको तस्लीम ही नहीं करते कि ये सदर है। किसको तस्लीम कर? वो अपने एक पहले एजाज साहब को सदर बना दिया एवं ही। उन्हें जिस पता चलिया कि यार ये बंदा गलत काम करवा रहा है मेरे को, वो मैनू उन्हें बुलाया, फोन किया, उन्हें कहा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ 449 ਰਦਾ ਬਲਾਕ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੌਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ तो की बने? तो आप लोग कितने भाई हैं? 8 भाई। 8 भाई एक ही जगह में रहते हैं? एक ही जगह पे नहीं रहते, एक बाप रहता है। एक सबसे बड़ा आगे, उससे छोटा जो इंग्लैंड चले गए हैं बच्चे, वो पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थे। उससे उड़ना जो है बाबडा में डायरेक्टर है, वो उधर होता है बाबडा टाउन में, वो डायरेक्टर हो गया। उससे छोटा एजुकेशन में था, तो वो भी इधर ही रहते हैं। तो उससे छोटा फिर डिफेंस और इधर जोहर टाउन में है। उसके बाद ये है जिसके साथ हमारा तनाज़ा चल रहा है, उसके बाद ये अमीन है, उसके बाद मैं जा। तो क्या समझते हैं कि अगर अल्लाह ताला उसे इस घटिया हरकत पर माफ़ करता है या नहीं करता, आपके आगे वो आगे अगर माफ़ी मांगता है तो आप उसे माफ़ कर देंगे? मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर लग है तो जो माफ उसको मैं भी माफ कर देता। जो बैठे हुए हैं बड़ी तकलीफ है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और ये आपके भतीजे ही आपकी जान के दुश्मन बन गए। मुझे बड़ी तकलीफ, चाय बुलाते नहीं देना सामने पीते थे, मैं घुसता कहता था यार तू सही है। तो आपका जो भाई है उसका क्या रिएक्शन है इस बात पर, जो उन्होंने आपको थप्पड़ों से मारा है? वो बेचारा बेबस हो गया है, उसके बाद की बात नहीं, वो खत्म हो गया। मैंने उसको नहीं मारा, अल्लाह मारेगा। मेरे मारता है तो अल्लाह मारेगा, मैं नहीं मारूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ आप भी जिए, मैं भी जी लेते, मेरा क्या होगा। वो आपका भाई आपके पास आया लड़ाई के बाद? कोई नहीं आया, कभी बुलाया नहीं। अभी तक लड़ाई के बाद आया नहीं कि मेरे बच्चों ने तो ज्यादती की तुम्हारे साथ, मस्जिद के अंदर तुम्हें मारा है? नहीं हो गया वो। नाज़रीन, इससे बड़ी कोई भी ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं है कि इस बंदे के ऊपर उसके भतीजों ने, जो बेटे समान होते हैं, जिन्हें बंदा अपने बच्चों की तरह पालता है, हम भी, आप लोग भी, देखने वाले सब नाज़रीन अपने भतीजों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके साथ लाड चाह करते हैं, उनके पाँव तक के बोसे ले लेते हैं, उनके सर का बोसा लेते हैं, हाथों का बोसा लेते हैं। जब भतीजे पैदा होते हैं सारी दुनिया उन्हें मुबारकबाद देती है, तो इनके भतीजों ने इनके साथ बेहद जुल्म किया है। और इस जुल्म और बर्बरियत के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए बिल्कुल मौजूद है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। देखते रहिए ARS पाकिस्तान।